Hello everyone and welcome to this lecture on classes and objects. In this session we shall learn what are classes and objects. We shall try to understand the concept with the help of numerous real-world examples. Once done with classes and objects, we shall try to see what are functions and how they can be added to a class. We shall also look at class access specifiers like private, public and protected, and other topics as well. So let us start with object-oriented programming. We are learning how programmer thinks about class and what actually classes are. We are about to discuss this. So on this slide you can see, just a minute. Programmer thinks about and defines the attributes and behavior of the objects. In what actually happens in object-oriented programming, we have been discussing this thing that object-oriented programming approach is bottom-up approach. Bottom-up approach means we look at the objects, we try to find out the behavior of objects, and then we try to build the program around that particular object. Instead of following top-down approach which we used to follow in C, we will be following bottom-up approach. So how programmer thinks? Programmer thinks about and defines the attributes. He thinks about the behavior of the objects. And what are objects? Objects are real-world entities. Say for example, I am an object, and all teachers like me, say for example Palak ma'am, I am teaching you, few more teachers are teaching you, we all are objects of which particular class? Teacher class. And you students, you are 60 in number in our class. So the 60 students that we have in the class are what? They are objects. So often objects are modeled after real world entities. Now this entire approach is very different from our functional based approach that we used to follow in programming language like C. So whatever content is there on this particular slide, we have been discussing this thing since the day one. If you have any question, you need any clarity, you can ask. Else I'll show you how classes are built and how they look like. Moving further, if you do not have a question, then let us start the discussion on classes. So on the slide, the first bullet, it shows us the bookish definition of the term class. किताबों में क्लास का क्या परिभाषा होती है वो यहाँ पे बेटा लिखी गई है. So simply speaking, classes are user defined. They are abstract data types. We'll dissect the definition. We'll look at what is the meaning of this term user defined. When we say classes are user defined, means who are the users? We are the users. Ultimately, we'll be writing the programs and we will be designing the classes. That is the reason we say that most of the classes will be user defined, though we have ready-made classes as well. But we are focusing on the classes which we will be learning, we will be designing. So the definition starts with user definition, means user defined. तो क्लास जो भी कुछ होगी वो क्या होगी? यूजर के द्वारा बनाई जाएगी. Abstract data type. Now, what is the meaning of this term abstract? There are two things, abstract and concrete. Okay? Abstract is something that does not occupy space in the real world, and concrete is something that occupies space in the real world. Say for example, BCA 3 morning is a class. How many semesters are there in BCA course? We all know there are 6 semesters. But can't we imagine that in the days ahead, university may change this entire thing and they may plan to have few more semesters added to BCA? It is quite possible. मतलब 6 सेमेस्टर्स की जगह क्या हम 8 सेमेस्टर नहीं कर सकते? क्या हम इस कोर्स को 4 साल का नहीं कर सकते? इफ वी डू सो, मान लीजिए आज ही कर देते हैं, आज से डिसाइड कर लेते हैं, देयर विल बी 8 semesters in BCA. So do we actually have any student studying in 7th semester right now? No. At the most you can have students studying in the 6th semester right now. And what about the 7th and 8th semester that we have planned to incorporate? No student will be there. So will that class occupy any space in real world? Classes do not occupy space in real world. What actually occupies the space in real world are the objects of the class. मतलब जो 7th और 8th सेमेस्टर हमने सोच लिया कि होगा वो अभी काल्पनिक है.
मीन्स इट इज जस्ट इन इमेजिनेशन, हमने ऐसा सोचा कि कर लेते हैं, 7th और 8th को भी ऐड कर लेते हैं. अनलेस एंड अनटिल द स्टूडेंट गेट्स एनरोल्ड, जब तक कि यूनिवर्सिटी एडमिशन प्रोसेस से एक बच्चा आता है, जब तक वो नहीं आएगा क्लास जगह नहीं लेगी. तो स्पेस कौन लेगा? स्पेस लेंगे उसके ऑब्जेक्ट्स. तो इसी कारण से हमने यहाँ पे क्या वर्ड यूज किया? दे आर एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स. सो व्हेनेवर वाइवा इज हेल्ड, इट्स अ वेरी कॉमन क्वेश्चन दैट एवरी टीचर प्रेफर्स टू आस्क कि बेटा प्लीज एक्सप्लेन मी व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म क्लास. तो क्लास क्या है? पहली चीज हम क्या बोलेंगे? इट इज यूजर डिफाइंड, हम बनाते हैं. ठीक है. सेकंड थिंग, इट इज एब्स्ट्रैक्ट इन नेचर बिकॉज इट डज नॉट ऑक्यूपाई स्पेस. Now third thing is data type. Fine. Recall C language. In C language, what all data types we studied? We looked at intrinsic data types like int, char, float, double. Their modifications like unsigned int, signed int. ये सब पढ़ा था. There were some qualifiers that we studied. Long एक qualifier होता है जो लगता है साथ में. ये सारी चीजें पढ़ी. Then we studied another data type which was an array. We studied the topic array. Array is again a data type. Then we studied another data type, structures. तो कोई पूछे what is a structure? So what is a structure? Structure is again a user defined data type. डेटा का प्रकार. एक्चुअली जो आप स्ट्रक्चर बनाते हो आप उसमें रखते क्या हो? Whenever you create structure, you create instances of the structure and what you store in that, you store data. ठीक है. तो किस प्रकार का डेटा? Heterogeneous data. Structure holds what type of data? Heterogeneous. Heterogeneous means एक word है homogeneous, other word is heterogeneous. Homogeneous means same type of data that applies to arrays. And heterogeneous means what? Heterogeneous Data of means multiple data. multiple type data. Means if we talk about a real world entity student. Now what data I can store about a student? I can always store age of student, that can be integer type. मैं कह सकता हूँ आप 18 साल के, 18 is an integer value. I can say that I can like to store name of a particular student. Now what type of value this name will be? It will be character value. So I have already decided to store two pieces of data. One is age, that is integer type. Other is name, that is character type. Since I am about to store multiple data types, so what can I say? I can say my structure is what? Heterogeneous in nature. Similarly, your classes are heterogeneous. Means you can always store dissimilar type data at one place. तो क्लास के अंदर क्या होते हैं? You can see a class contains data, that is data members. Now when we talk about data members, these can be of multiple types. You can have integer values, you can have character values, you can have float and double type values, any other thing, any type of data which you feel like storing, you can always have it as a member. तो डेटा मेंबर्स कई तरह के हो सकते हैं. सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज देयर इन क्लासेस आर फंक्शंस. This topic functions, we were not able to store functions as members in structures in C. But when we talk about C++, you can have functions in class, you can have functions in structures also. Fine. Then what is the difference between a structure in and class in C++? तो क्लासेस देखने में स्ट्रक्चर के जैसे दिखते हैं. ठीक है. ओनली डिफरेंस इज एवरीथिंग इन अ क्लास इज बाय डिफॉल्ट प्राइवेट and everything in a structure by default is public. ठीक. तो अपने लिए इस लास्ट पॉइंट को पढ़िए. लेट अस रीड आउट दिस पॉइंट. The last bullet on this slide says, in other words, what are classes? They are structures, plus they have functions, plus they have private access specification. अब इसमें से मैं ये प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफिकेशन हटा दूं, ये लास्ट चीज हटा दूं, तो क्या आपके पास बचेगा? स्ट्रक्चर और फंक्शन. मतलब स्ट्रक्चर में फंक्शंस हो सकते हैं, हट क्या गया? प्राइवेट एक्सेस. बट व्हेन वी हैड प्राइवेट एक्सेस आल्सो अलोंग विद, देन इट बिकम्स अ क्लास. तो वो स्ट्रक्चर्स नहीं रह जाते. जब प्राइवेट एक्सेस की हम बात करेंगे तो फिर क्या बन जाएगा? वो क्लास बन जाएगी. ये तो सब बुकिश डेफिनेशन है बेटा. इसको और अच्छे से समझने के लिए आगे चलते हैं और देखते हैं क्या है. सो ऑन दिस स्लाइड वी हैव अ क्लास डेफिनेशन शोन. Whenever you are asked to create a class, you have to start with a keyword CLASS.
जब भी क्लास बनानी होगी प्रोग्राम में, कोई क्लास जैसी चीज बनानी पड़ा करेगी, तो हम क्या लिखेंगे? विल राइट क्लास, will give a space, and then what follows is the class name. This class name you are free to decide. Whatever name you feel, you can decide. You can name the class the way you want. Then after giving the name to the class, we put curly braces as shown in the box, blue color box shown below. You can see a pair of curly brackets. This pair of curly brackets is used for demarcation. Demarcation, what I mean by demarcation means ये बताता है क्लास where the class starts and where it ends. क्लास की शुरुआत और क्लास का अंत क्या होगा वो कर्ली ब्रैकेट से दिखाया जाता है. तो इस स्लाइड पे और कुछ खास चीज नहीं है. ये एरो जो लगा है, ये एरो क्या कहता है? द डॉटेड लाइंस शो दैट यू कैन ऐड मेंबर फंक्शंस, यू कैन ऐड मेंबर डेटा एट दिस पर्टिकुलर प्लेस. ये जो बीच वाली खाली जगह है यहाँ पे क्या आता है? क्लास बॉडी. When we say class body, what do I mean by class body? I mean to say you can add data members and you can have member functions. तो ये अभी अगली स्लाइड पे हम और डिटेल में पढ़ते हैं. Now, within the body of the class, we can have various access specifiers. Means you can have a private section in class, you can have public section in class. One more section exists which is not shown on the slide here. It is protected section. Protected section is applicable to interfaces. Oh sorry, inheritance. जब तक inheritance नहीं पढ़ेंगे, there is no meaning of protected. Protected is just same as private. तो अभी उसको जानबूझ के यहाँ पे मैंने omit किया है. But that does not mean only two qualifiers exist. Totality, there are three qualifiers. One is private, the other is public, third one is protected. वो किस में एप्लीकेबल है? इनहेरिटेंस में. तो जब इनहेरिटेंस पढ़ेंगे तब उसको समझेंगे, अभी हम कंफ्यूज नहीं होंगे. तो अभी क्या मानेंगे? Class has two sections. One is private, the other is public. Fine. So within the body, keywords private and public specify the access level of the members of the class. Now, what is the default? Which particular keyword is by default? So class defaults to private qualifier. Means by default everything in a class remains private. Let us look at the second bullet. Usually, इस चीज पे ध्यान देना. The very first word written here, this is the most important word. हमने ये नहीं लिखा है always, हमने क्या लिखा? Usually. Usually the data members of a class are declared in the private section of the class and member functions are kept in the public section. But ये कोई hard and fast rule नहीं होता है. ठीक है? अक्सर ऐसा होता है कि आप डेटा को कहाँ रखते हो? प्राइवेट. क्योंकि सेफ्टी किसको देनी है? सिक्योरिटी किसको देनी है? वी नीड टू सिक्योर व्हाट? आवर डेटा मेंबर्स, नॉट द फंक्शंस. सो व्हाट वी डू, वी कीप आवर डेटा इन प्राइवेट एंड फंक्शंस इन पब्लिक. फाइन. बट एट टाइम्स इट इज क्वाइट पॉसिबल दैट यू मे फील लाइक क्रिएटिंग फ्यू फंक्शंस इन प्राइवेट एज वेल. ऐसा भी हो सकता है कि आप कुछ फंक्शंस को प्राइवेट में बनाएं. I can see Ronit and Saloni have left the session. तो अभी CR ग्रुप में कौन है बेटा आपके? Can you share the name of CR and is the person attending the class? Students, am I audible? Yes, sir. Who is the CR in the class? Lavisha. Lavisha and Ria. Ria Dudeja. Okay. So Vivek. So I request CRs to please take a screenshot of the participants currently attending the session. Those who have left, Okay. they'll lose attendance. And kindly share the screenshot with me at the end of the class. Okay, sir. फाइन. क्योंकि फायदा कुछ नहीं बेटा, अगर अटेंडेंस के लिए आने का क्या मतलब है? आपने पैसे, इतनी फीस आप देते हैं और आगे आपको प्लेसमेंट्स चाहिए, आप सेशन छोड़ के चले जाएंगे तो फिर सीखेंगे कैसे? और कर्टसी क्या कहती है कि अगर जाना होता है, किसी को प्रॉब्लम हो सकती है, तो यू नीड टू सीक प्रायर परमिशन. लेक्चर से पहले बता सकते हैं कि भाई ड्यू टू सम प्रॉब्लम आई मे नॉट बी एबल टू ज्वाइन. एंड एट टाइम्स आई एग्री, टेक्निकल इश्यूज, पावर फेलियर, दैट टेक्स प्लेस, वो तो होता है. मगर इफ इट इज क्वाइट ओपन हो गया था. इफ इट इज क्वाइट आगे मैं वापस. चलिए, गुड, वेरी गुड. मैं चाहता हूं कि हर बच्चा जो है वो सेम पेस पे सारी चीजें सीखे. मैं नहीं चाहता कि क्लास में कुछ बच्चे बेटा पीछे रह जाए. ठीक है? बिकॉज दिस इज
the world of computers, and in the Okay, world of sir. computers, learning programming is most important because you get high paid jobs when you learn programming. और प्रोग्रामिंग नहीं सीखी जॉब्स तो मिल जाएंगी मगर फिर सैलरी अच्छी नहीं मिलती है, ठीक है? तो सब लोग अच्छे से सीखो, जितने क्वेश्चन से पूछो, जहां समझ नहीं आया वहीं पे रोक दो. You can ask as many questions as you feel like. On up till this slide, if you have any question, please ask. Vivek, you want to say something? And anybody can ask questions. If you have any questions, please ask. Else I'll move further. Okay. So on this particular slide, I have tried to show you the general syntax of the class. In the blue color box, you can see that we need to write class, which is a keyword, CLASS, it's must and should, we have to write. What follows is the class name. It can be anything. Curly brackets are used for demarcation, that they show the starting and ending of the class. As mentioned, our class can have two sections, one is private, the other is public. Writing PRIVATE is optional because by default everything is private. But as a student, it is expected from you that you will always write PRIVATE. You will show us that you understand the purpose and meaning of private. Fine. So this is a general syntax. This shows that in this area, what we can have private members or methods. Pay attention. I have not simply written private members. I have also written methods. Means in the private section, you can have data as well as methods. Methods means functions. तो दोनों चीजें हो सकते हैं यहाँ पे. तो मैंने आपको ये बिल्कुल नहीं सिखाया है कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डेटा होगा, फंक्शंस भी हो सकते हैं. अब दिमाग में अगर सवाल ये आए कि वो फंक्शंस कॉल कैसे होंगे, तो आई विल एक्सप्लेन इन लैब सेशन. आई विल टीच यू, आई विल एक्सप्लेन यू that if we have a function in the private section, then how to use that particular function. This thing I'll clear in the lab session. Now in the public section, again we can have two things. We can have member functions, we can have data as well. अब जिस डेटा के लिए सिक्योरिटी बहुत महत्व नहीं रखती है, मीन्स द पीस ऑफ डेटा विच यू कैन कॉम्प्रोमाइज, मीन्स यू से कि इट इज द सिक्योरिटी इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, दैट यू कैन ऑलवेज डिक्लेयर इन दिस सेक्शन. दूसरे शब्दों में, इन अदर वर्ड्स, व्हाट आई मीन टू से इज इफ यू डिक्लेयर डेटा इन द पब्लिक सेक्शन, नेवर थिंक यू विल गेट एरर मैसेज. कंपाइलर इज नॉट गोइंग टू गिव यू एनी एरर. एरर नहीं आएगा. जरूरत पड़े तो पब्लिक में डेटा डालिए, नहीं जरूरत है, रिकमेंडेशंस कहती हैं डेटा को प्राइवेट में ही रखिए. चलिए आगे. नाउ मेंबर एक्सेस स्पेसिफायर्स पब्लिक. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस पब्लिक स्पेसिफायर? इट सेज व्हाटएवर यू. यस. I remember you told us about the third type in which we can store data members in a class, the protected one. प्रोटेक्टेड. यस यस यस, तो बिल्कुल. सर उसमें क्या डिफरेंस है सर बाकी दो टाइप से? बेटा वो मैंने अभी भी बताया, प्रोटेक्टेड इज यूज फॉर इनहेरिटेंस पर्पस. अब आप पूछ रहे हैं तो मैं आपको थोड़ा सा जरूर बता देता हूँ. प्रोटेक्टेड अगर आप बनाते sir. हैं, देखो डाटा को जनरली हम कहाँ रखते हैं? प्राइवेट में. अगर आपने कोई डेटा प्राइवेट में रखा और उसके बाद चाइल्ड क्लास बनाई, तो ये प्राइवेट डाटा चाइल्ड क्लास में इनहेरिट नहीं होगा. वी कैन नेवर नेवर इनहेरिट प्राइवेट डेटा. ठीक है. तो जब इनहेरिटेंस का केस आएगा तो हमें क्या चाहिए कि डाटा इनहेरिट हो पाए. ठीक है. और साथ साथ डेटा सिक्योरिटी भी मिल जाए. ठीक है. तो प्रोटेक्टेड डाटा की खासियत क्या होती है कि इट इज एज सेफ एज प्राइवेट. सेफ्टी मिल गई, बट कैन बी इनहेरिटेड एट द सेम टाइम. प्राइवेट डाटा only provide security and that too so tight that you cannot inherit that data. तो जो कुछ प्राइवेट में लिखोगे वो इनहेरिटेंस में नीचे वाली क्लास में जाएगा ही नहीं. इतनी टाइट सिक्योरिटी मिल जाएगी. मगर भाई इतनी टाइट सिक्योरिटी नहीं चाहिए हमको. हमें उस डाटा को नीचे भेजना है. इनहेरिटेंस का रियल पर्पस क्या है? जो कुछ ऊपर है वो हमें मिल जाए. वी कैन इनहेरिट दैट सो दैट वी कैन यूज दैट. तो प्राइवेट तो इनहेरिटेंस ही रोक देगा, वो डाटा आगे जाने ही नहीं देगा. तो इन दैट पर्टिकुलर केस आई वुड रिकमेंड, या वो मैं कौन होता हूँ, ऊप्स रिकमेंड्स, C++ रिकमेंड्स कि प्रोटेक्टेड यूज कीजिए. प्रोटेक्टेड डाटा कैन बी इनहेरिटेड, प्राइवेट डाटा कैन नॉट बी. इज दिस अंडरस्टूड? एनी अदर क्वेश्चन? प्रैक्टिकली एवरीथिंग विल बी डेमोन्स्ट्रेटेड एज एंड व्हेन वी डिस्कस दैट पर्टिकुलर टॉपिक. जब इनहेरिटेंस पढ़ रहे होंगे
प्रोटेक्टेड का मीनिंग आपको वहां पे और प्रैक्टिकली समझाएंगे। अभी इनहेरिटेंस पे नहीं जा सकते, वरना एक जगह से दूसरी जगह पे जंप करते रहे तो जो पढ़ रहे हैं वो भी सब कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, सो Yes, yes. हैव लिटिल पेशेंस। चलिए, Okay, sir. so public and protected I think is clear. Private data accessible only to the functions in the class. Private members and methods are for internal use only. You cannot access private data from within main or any other function. वो क्लास में ही यूज हो सकता है, क्लास के फंक्शंस उसको एक्सेस कर सकते हैं जो पब्लिक में होंगे, मगर क्लास की बाउंड्री के बाहर किसी भी जगह पे क्लास के प्राइवेट डाटा को यूज करने की कोशिश करोगे तो एरर आएगा। Private property of the class can only be accessed from within the class. Now let us look at some real life example. In the box, blue colored box shown below, we have a class named as circle, and this circle class has only one data member that is declared in the private section, and its name is radius. तो यहाँ पे हमने क्या बताया, प्राइवेट सेक्शन में एक रेडियस नाम का डेटा मेंबर बना लिया। Data type of that radius is double. Double is for floating type values, means decimal values. Then in the public section below, you can see there are 4 function headers written. ये function header हैं, body नहीं है। So these are function headers. So what we have been discussing since from day one, class has 2 sections, private and public. What we store in private? Data. What we store in public? The functions. Functions that will modify the value. So what functions we have here? We have a set radius function that will set the radius value. वो बाहर से वैल्यू लाएगा r में और r को रेडियस में सेट करेगा, उसकी ड्यूटी है। Another function will calculate the diameter of the circle for us. वो क्या होगा, रेडियस का डबल। डायमीटर क्या होता है, 2r, दैट इज रेडियस मल्टीप्लाइड बाई 2, तो गेट डायमीटर उतना सा काम करेगा। देन वी हैव गेट एरिया फंक्शन। वी ऑल नो हाउ टू कैलकुलेट एरिया ऑफ सर्कल, 3 पाई आर, और क्या कहते हैं, पाई आर स्क्वायर, 3.14 इंटू आर। एंड हाउ वी कैलकुलेट सर्कमफ्रेंस, इट इज 2 पाई आर। फॉर्मूला तो सबको याद होगा सर्कल का, मैथमेटिक्स इतनी तो कमजोर नहीं होगी आपकी। थोड़ी बहुत फॉर्मूला, थोड़ी बहुत मैथमेटिक्स तो बीसीए स्टूडेंट्स से एक्सपेक्ट की जाती है कि उनको आती है, बिकॉज यू हैड मैथमेटिक्स बैकग्राउंड और ये सब पढ़ा भी होगा। जी, चल में सर अगर फंक्शन पब्लिक है तो मतलब वो क्लास के बाहर एक्सेस हो सकते हैं, जी बिल्कुल। बट अगर हम फंक्शन में प्राइवेट डेटा यूज करें तो वो एरर नहीं देगा? नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि अच्छा। फंक्शन खुद कहाँ है, खुद तो क्लास के अंदर है ना, और क्लास के अंदर की चीजें, आप अपने घर के अंदर हो तो आप तो अपने घर के एसी को यूज कर सकते हो। योर नेबर कैन नॉट यूज योर एसी बिकॉज योर एसी इज प्राइवेट प्रॉपर्टी। हाँ, योर नेबर कैन कॉन्टैक्ट यू एंड इफ यू परमिट देन वाया यू ही कैन एक्सेस, ही और शी कैन एक्सेस योर एसी। ठीक है, सिंस यू आर इन द पब्लिक सेक्शन। आप पब्लिक सेक्शन में क्यों हैं? क्योंकि आपको तो दुनिया में बाहर जाना है ना, आप घर के अंदर ही थोड़ा ना रहेंगे। हाँ, आपका एसी आपके घर के अंदर रहेगा, वो बाहर नहीं घूमता रहेगा। जो एसी आपने माउंट कर दिया वो तो वहीं रहेगा जहाँ पे लगा है। फिक्सचर्स जो होते हैं वो नहीं मूव करते, बट वी आर मोबाइल, हम घूमते रहते हैं, है ना। तो पब्लिक सेक्शन वी हैव फंक्शंस दैट एक्ट एज एन इंटरफेस। तो पब्लिक सेक्शन में जितने भी फंक्शन है दे एक्ट एज इंटरफेस। दीज आर दी फंक्शंस दैट विल अलाउ आउटसाइडर टू रीच रेडियस। बाहर की दुनिया अगर रेडियस तक पहुंचना चाहती है तो इन्हीं फंक्शंस की मदद से पहुंचेगी, क्योंकि ये खुद पब्लिक में है और क्लास के अंदर है। अभी देखेंगे कोड और अच्छे से समझ में आएगा आपको। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन ऑन दिस स्लाइड यू आर फ्री टू आस्क। सर जी सर जैसे अभी हमने इसमें प्राइवेट में रेडियस डिक्लेयर करा है। जी मान लीजिए सर, अगर हम प्राइवेट के अंदर एक पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर कर दे, पॉइंटर स्टार एक्स, मतलब ठीक। स्टार एक्स करके एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दे और उसको मेन में इंक्रीमेंट कर दे, ठीक है। तो सर वो प्राइवेट में तो क्योंकि वो वैल्यू को पॉइंट कर रहा होगा, तो जो इस एड्रेस लोकेशन पे होगी वो वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी। अगर मैं मेन में पॉइंटर को एक्सेस कर लूँ तो मेन में आप एक पॉइंटर बना के रेडियस को एक्सेस कर सकते हो, मगर अगर आप पॉइंटर को ही प्राइवेट में बना रहे हो तो फिर मेन में कैसे एक्सेस करोगे? आप जो कहना चाह रहे हो मैं समझ गया। बात ये है कि हम पहले दिन से कह रहे हैं कि प्राइवेट सेक्शन डेटा इज सेफ, मगर मैंने आपको याद हो तो लास्ट लेक्चर के एंड में बोला था ये सब जो बातें हैं ये बेसलेस हैं। ये डेटा सिक्योरिटी की C++ सिर्फ बातें करती है, कोई डेटा सिक्योरिटी नहीं है। एक पॉइंटर मेन में बनाएंगे
और उससे जब चाहेंगे आपके रेडियस को मॉडिफाई कर देंगे, और ये कहती रह जाएगी कि वो तो प्राइवेट में था, बैठा रहे प्राइवेट में। पॉइंटर बनाओ, एड्रेस रेडियस का असाइन करो और यू कैन मॉडिफाई रेडियस। वो तो हो ही जाता है, मैंने आपको बताया है, दैट इज पॉसिबल। तो सी प्लस प्लस जो है वो सिर्फ कह रही है कि डेटा सिक्योरिटी है, डेटा सिक्योरिटी है ना। जैसे आप कहते हो मेरा घर सेफ है, मेरे घर का लॉकर सेफ है, जरा बाहर घूमने जाओ फिर चोर बताएगा आपको सेफ कितना है ना। तो सेफ्टी बिल्कुल भी नहीं है सी प्लस प्लस में। क्यों नहीं है? क्योंकि पॉइंटर्स यहाँ पे जिंदा है। सी प्लस प्लस अलाउ यू टू क्रिएट पॉइंटर्स, एंड पॉइंटर इज समथिंग दैट इज डेडली। इट कैन पॉइंट टू एनी मेमोरी लोकेशन, एंड यूजिंग दैट यू कैन डू एनीथिंग। अच्छा, कोई मुझे ये बताओ, आपने सी लैंग्वेज में नियर, फार, ह्यूज पॉइंटर्स पढ़े थे? हैव यू स्टडीड दिस टॉपिक? नियर पॉइंटर, लार्ज, ह्यूज पॉइंटर, फार पॉइंटर, ऐसा कुछ पढ़ा है आपने? Oh, sir. हाँ सर। नहीं पढ़ा है। आपने नहीं पढ़ा तो आज इंटरनेट पे घर में जो फ्री बैठे हैं तो सर्च कीजिएगा क्या होता है नियर, फार, ह्यूज पॉइंटर। मैं एक पॉइंटर क्रिएट करके इस सिस्टम के ड्राइवर को करप्ट कर सकता हूँ। ये जो इतनी सारी स्क्रीन चल रही है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम में घुस जाएगा और सारा ड्राइवर करप्ट कर देगा डिस्प्ले का। पॉइंटर्स आर वेरी पावरफुल। वो किसी भी मेन मेमोरी के एरिया को एक्सेस कर सकते हैं। प्रोसेसर की मेन मेमोरी की बात कर रहा हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट रैम। रैम तो एक चीज होती है बेटा, एक चीज होती है जिसे प्रोसेसर कहते हो। i3, i7, i5 कुछ प्रोसेसर होता है ना। प्रोसेसर हैज इट्स ओन इंटरनल मेमोरी इन द फॉर्म ऑफ रजिस्टर्स, एंड पॉइंटर्स आर सो पावरफुल दैट दे कैन एक्सेस एनी पर्टिकुलर रजिस्टर। अगर आपने कंप्यूटर आर्किटेक्चर पेपर नाम सुना हो या इस सेमेस्टर में आप पढ़ रहे होंगे तो आपको प्रोसेसर और रजिस्टर्स पढ़ाए जाएंगे। Your pointer can access any register and can modify the value since it is pointing to that value. So that तो is the ये reason- पढ़ा है, पढ़ा है ना? ये पढ़ा है सर। This is the रजिस्टर reason. में वैल्यू स्टोर। हाँ, बहुत अच्छी बात है। रजिस्टर्स में वैल्यू स्टोर होती हैं। मैं उस वैल्यू को पॉइंटर से एक्सेस करूंगा, सी प्रोग्रामिंग से उसकी वैल्यू चेंज कर दूंगा। TSR प्रोग्रामिंग भी होती है, पढ़िए सब कुछ क्या क्या है। C is so powerful that it can access any memory location using pointers. फिर जो डेटा सिक्योरिटी की बातें इतनी सारी हमने करी है, क्या है? तो सब बकवास बातें हैं, है ना। फिर ये कुछ रह ही नहीं जाएगा सिक्योरिटी। नथिंग इज सिक्योर एज लॉन्ग एज यू हैव पॉइंटर्स। दिस इज द रीजन जावा डज नॉट अलाउ अस टू क्रिएट पॉइंटर्स, बिकॉज पॉइंटर्स आर द मेन कॉज ऑफ सिक्योरिटी ब्रीच। इफ वी हैव पॉइंटर वी कैन एक्सेस एनी मेमोरी। तो पॉइंटर को ही हटाना है, पॉइंटर्स बने रहेंगे तो सिक्योरिटी की सिर्फ बातें थियोरेटिकली तो हैं, प्रैक्टिकली एनी स्टूडेंट कैन क्रिएट अ पॉइंटर एंड कैन चेंज रेडियस वैल्यू। हटा दो नीचे के सारे फंक्शन। You can see we have 4 functions declared in the public section. We do not need any. I can create a pointer and I can play with your radius value the way I want. Fine. मगर अब थ्योरी में तो भाई C++ जैसी है वो तो मैं नहीं बदल सकता, वो तो डेवलपर्स ऐसी बना के गए हैं, उसमें प्रॉब्लम्स हैं तो हैं, ठीक है। मगर सवाल ये आता है कौन सी डेटा सिक्योरिटी की हम बात कर रहे हैं। डेटा सिक्योरिटी, डेटा में मॉडिफिकेशंस ना होना, यही तो होती है सिक्योरिटी। वी वांट टू स्टॉप अनऑथराइज्ड एक्सेस, ठीक है। अब बात जब इस सिक्योरिटी की आती है बेटा, तो दो तरह से डेटा को डैमेज पहुंचाने वाले दो तरह के लोग हो सकते हैं, वन अनइंटेंशनल एंड वन दोज हु हैव बैड इंटेंशंस। बैड इंटेंशंस तो यू कैन नॉट स्टॉप, वो तो कोड लिख सकता है ऐसा, मगर अनइंटेंशनली जो मॉडिफिकेशंस हुआ करते थे, रेडियस प्लस प्लस गलती से कॉपी पेस्ट हो गया और वो बढ़ गया, वो नहीं होने देगी है। इतनी सिक्योरिटी तो आपको देगी। प्राइवेट डेटा रेडियस, मेन के अंदर जाके रेडियस प्लस प्लस लिखना, C++ will not allow this thing. If you write radius plus plus inside main, inadvertently you have copy pasted that code, so you'll get error message कि this is private data, you are not allowed to write it here. But it cannot stop malified intentions. If people with malified intentions deliberately attempt to create a pointer, assign address, and using that pointer they try to modify, they are allowed. तो मैं उन लोगों को क्या कहूँगा, मैं कहूँगा कि डेटा सिक्योरिटी को ये जानबूझ के तोड़ने आए हैं। अनजाने में आप नहीं तोड़ पाएंगे, आप कॉपी पेस्ट करके लिख देते हैं, गलती से R++ लिख देते हैं, वो नहीं होगा। तो एटलीस्ट अप टू सम एक्सटेंट वी कैन से इट इज स्टिल बेटर देन सी में तो कुछ भी नहीं था। आवर डेटा वाज इन वल्नरेबल स्टेट, यू कैन मॉडिफाई डेटा व्हेनेवर यू वांट। उसमें अनइंटेंशन और इंटेंशन जो जैसी हो सब कुछ चलता है, मगर C++ में
जो मैलिफाइड इंटेंशंस होंगी, डेलिबरेटली पॉइंटर बना के काम करने वाली इंटेंशन, उसको तो C++ नहीं रोक सकती, वो जावा रोक सकती है. I hope I am clear on this. If you have any question, please ask. चलिए. Now classes, so we have seen. Let us look at objects. Because classes were abstract, but objects are not. Objects are concrete things. Means whenever you create an object, it occupies space in real world. IP University created 60 objects in the morning class, and we have 60 objects sitting at different places in Delhi, and they are attending my lecture, and everybody is occupying space in the real world. So what are objects? Object is an instance of a class. In other words, declaring a variable of a class type creates an object. We can create any number of objects we want. बनाए तो कितने भी जा सकते हैं, ठीक है. प्रोग्रामिंग में जितने मर्जी ऑब्जेक्ट्स बना लो, 2, 20, 30, 40, 50, 60, 100, जितने मर्जी बनाओ, जितनी मेमोरी है आपके पास उतना बनाते जाओ. Once an object of a certain class is instantiated, a new memory location is created for it to store its data. ये चीज ध्यान रखना. इस पॉइंट को नेक्स्ट स्लाइड पे शो करूंगा आपको. Whenever you create an object, some memory for that object is created. Now, how much memory? When we create object, how much memory is required? This depends on the number of data members which are there in the class. If you recall, in our class we had only one member radius. इस रेडियस को कितनी जगह चाहिए? Look at the data type, it is double. तो डबल कितनी मेमोरी मांगेगा? 8 बाइट्स. फ्लोट को 4 चाहिए, डबल को 8 चाहिए. 8 बाइट मेमोरी इज रिक्वायर्ड in order to create C1. The last line on the slide in red color, when we create this object C1, how much memory do we need? We need 8 bytes to store radius. When we create another object C2, we need another 8 bytes. When we create the third object, we need another 8 bytes. Means totality we need 24 bytes of memory. Minimum 24 बाइट की जरूरत है अपनी सर्कल क्लास के ऑब्जेक्ट्स बनाने के लिए, 3 ऑब्जेक्ट्स के लिए. अगर आप एक और ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो रेडियस उसके पास भी होगा, वो भी मेमोरी मांगेगा. समझने के लिए स्लाइड देखते हैं. So in this slide, when you create C1, memory for the radius C1 object is shown in this diagram in the form of an ellipse, which in turn shows we have a cell at some memory location 100 labeled as radius. तो ये क्या कहलाएगा? C1 dot radius. C1 dot radius will occupy 8 bytes. If on executing the second statement, another object gets created, means another 8 bytes are required. When you create the third object, another 8 bytes, and every object gets separately stored at different locations. Means our first object radius is stored at address 100. For the second object, radius will be stored at some location 350, say for example, and for the third object maybe at some other location 600. अब ये locations क्या होंगी? That we cannot control. We programmers cannot control. Locations will be decided by the operating system. Wherever operating system finds empty space, it will allot this space to us. And this way, all 3 objects will have their own copy of data member radius, which will be stored at different memory locations. तो ऑब्जेक्ट्स का समझ में आया? ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो मेमोरी लेते हैं. क्लास मेमोरी नहीं लेती है. क्लास एब्स्ट्रैक्ट होती है. कंडीशन अप्लाई. मैंने क्या कह दिया? क्लास मेमोरी नहीं लेती है. तो सब बच्चे क्या सोचेंगे? क्लास मेमोरी सही में नहीं लेती. सच बताऊं तो क्लास के लिए मेमोरी सही होती है बेटा. आप ऑब्जेक्ट बनाओ या ऑब्जेक्ट ना बनाओ, क्लास के लिए भी थोड़ी मेमोरी की ज़रूरत होती है, क्योंकि क्लास के अंदर क्या थे? फंक्शंस. ठीक है, फंक्शंस तो जगह लेंगे ना. तो आपके लिए क्वेश्चन है, आप सर्च कीजिएगा नेट पे कि एक एम्प्टी क्लास कितनी जगह लेती है. आपको जवाब मिलेगा 1 बाइट. एम्प्टी क्लास मीन्स व्हाट? क्लास नेम curly bracket semicolon. Nothing in the class. ना डेटा मेंबर ना मेंबर फंक्शन. स्टिल दैट क्लास विल ऑक्यूपाई 1 बाइट मेमोरी, क्योंकि ये तो मिनिमम मेमोरी है. क्लास बनाई है, कुछ भी बनाया है, उसको दिखाना है, तो एटलीस्ट वी नीड सम मेमोरी. बट दैट मेमोरी इज कंपैरेटिवली सो स्मॉल when compared to objects that we say class does not occupy memory.
क्लास के लिए तो एक बार जगह फिक्स हो जाती है, थोड़ी सी जगह उसके फंक्शंस को जितनी चाहिए, मगर ऑब्जेक्ट तो आप 1 लाख ऑब्जेक्ट बना सकते हो ना। हर ऑब्जेक्ट 8 बाइट मांग रहा है तो 1 लाख कितनी मांगेगी? 8 लाख बाइट। तो ऑब्जेक्ट्स की मेमोरी जो रिक्वायरमेंट होती है उसके कंपैरिजन में क्लास की रिक्वायरमेंट इतनी कम है कि हम कहते हैं जी क्लास कुछ नहीं मांगती, क्लास को मेमोरी की जरूरत नहीं है, ठीक है। मगर ये थ्योरी में पढ़ने वाली चीजें प्रैक्टिकली थोड़ी अलग निकलती हैं, आप चेक करिएगा इसको, साइज ऑफ ऑपरेटर से आप चेक कर सकते हैं। इस स्लाइड पे कहीं कोई कंफ्यूजन, एनी क्वेश्चंस यू विश टू आस्क? दिस इज जस्ट अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशंस, प्रैक्टिकली देयर आर नो सच इलिप्सेस, जैसे यहाँ दिखाया ऐसा कुछ होता नहीं है मेन मेमोरी के अंदर कि कोई इलिप्टिकल एरिया होगा। दिस इज जस्ट अ रिप्रेजेंटेटिव डायग्राम, आपको समझाने के लिए बनाया गया है। चलिए, नाउ लेट अस लुक एट हाउ अ क्लास इज डिक्लेयर्ड। सो as mentioned, we start with a keyword class, we name to the class, then in the private section we generally declare data members, यहाँ पे radius बना दिया गया। Then in the public section we try to add member functions. Member functions will be those which will be actually modifying radius value, which will be working or manipulating over this radius value. तो सबसे पहला फंक्शन set radius, ये set radius क्या करेगा? मेन में जब आप कॉल करेंगे, हमेशा याद रखना, यू क्रिएटेड 3 ऑब्जेक्ट्स C1 C2 C3, तो मेन में कॉलिंग कैसे होगी? C1 डॉट सेट रेडियस, C2 डॉट सेट रेडियस, C3 डॉट सेट रेडियस, और कॉल करते समय सेट रेडियस आपसे एक आर्ग्यूमेंट की उम्मीद करता है, डबल टाइप वैल्यू। सो मैं क्या लिखूंगा? C1 डॉट सेट रेडियस राउंड ब्रैकेट्स 7.0। मैंने क्या किया? रेडियस वैल्यू कितनी भेजी C1 में? 7.0। तो वहां से मेन से जब मैं 7.0 भेजूंगा बेटा, तो वो कहां पहुंचेगा? R के अंदर। जो वैल्यू R लेके आया वो R अपनी वैल्यू किसको दे देगा? रेडियस को। तो इस रेडियस में वैल्यू कौन लेके आ रहा है? आपका ये सेट रेडियस फंक्शन, ठीक है। तो आप ऐसा एक फंक्शन बना सकते हैं जो मेन से एक रेडियस वैल्यू लाएगा और रेडियस तक पहुंचाएगा। चलो, then we have calculative functions which will do certain type of calculations. We need to find out the diameter. Diameter you all know, इसमें एक parenthesis वो round bracket missing है, get diameter में देखो लास्ट में ओपनिंग ब्रैकेट तो है, क्लोजिंग नहीं लगाया, तो उस एरर को ओमिट कीजिए। आगे देखते हैं इसमें क्या फॉर्मूला आ गया बेटा? रिटर्न रेडियस इनटू 2। वी ऑल नो व्हाट इज डायमीटर, इट इज ट्वाइस द रेडियस, so formula is accordingly designed. It will multiply radius with 2 and will return the value. In 5 minutes from now the lecture will get terminated. So आपको पहले बता दिया बेटा, अचानक से बंद हो जाता है अच्छा नहीं लगता है ना, मगर 5 मिनट का अलार्म लग चुका है। Next function is get area function. Now what is this get area? What is this function supposed to do? एरिया निकालो। एरिया कैसे निकलता है सर्कल का? पाई आर स्क्वायर। तो आर आर तो लिखा ही हुआ है, रेडियस इनटू रेडियस वी ऑलरेडी हैव रिटन, विल बी मल्टीप्लाइड टू 22/7। इंस्टेड ऑफ 22/7 यू कैन डायरेक्टली राइट 3.14, ऐसा भी आप कर सकते हैं। दिस वैल्यू विल बी कैलकुलेटेड एंड द कैलकुलेटेड वैल्यू विल बी रिटर्न बैक। रिटर्न बैक कहाँ पे? मेन में, जहां से कॉल आएगा। लास्ट फंक्शन, it calculates circumference, formula is 2 pi r, will calculate the circumference for us. So this way you can keep on adding functions, जितनी जरूरत है जो काम का है उसको ऐड करते रहिए। इन सबको क्या बोलेंगे? मेंबर फंक्शंस डिफाइंड इनसाइड द क्लास। नाउ let us discuss how to define functions in the class. Basically there are two ways possible. First method is declaring the functions in class and defining them outside. मतलब यहाँ देखिए, क्लास के अंदर जो 4 फंक्शंस पब्लिक में नजर आ रहे हैं, we have only declared them inside the class. इनकी बॉडी नहीं है फंक्शंस की। Please read the statement written in red color. All functions declared inside class and defined outside class. When I say outside class, my class ends at this position. कर्ली ब्रैकेट देख लीजिए बंद होने वाला, क्लास यहाँ पे बंद हो जाएगी, ठीक है। तो फिर फंक्शन की डेफिनेशन कहाँ आएगी? बाहर आएगी। मतलब फंक्शंस को ऊपर डिक्लेयर किया, नीचे डिफाइन किया।
और पिछले एग्जाम्पल में क्या था, अंदर ही डिफाइन किया हुआ है सब कुछ। तो आप चाहो तो अपने फंक्शंस को क्लास में अंदर ही डिफाइन कर दो। इफ यू वांट यू कैन डिफाइन द फंक्शंस विद इन द क्लास, और you can declare them within the class and define them outside the class. But one thing that you need to keep in mind, if you define your functions outside the class, now how will the compiler get to know that to which class this function belongs? अगर आप अपने फंक्शन को क्लास में डिक्लेयर करेंगे और उसको डिफाइन क्लास के बाहर करेंगे, तो कंपाइलर को कैसे पता चलेगा कि आपने ऐसा किया है? वो कैसे पता चलेगा? यहाँ पे जो मैंने हाईलाइट किया उसको देखिए। We write return type, we write the name of class, we put a scope resolution operator and then the name of the function and the body of the function. तो हर फंक्शन में सर्कल स्कोप रेजोल्यूशन, सर्कल स्कोप रेजोल्यूशन, सर्कल स्कोप रेजोल्यूशन क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि मैं बताना चाहता हूँ कि मेरा ये फंक्शन सर्कल क्लास का मेंबर है। ठीक है, आप कहोगे सर एक ही तो क्लास है, कोड में बताने की क्या जरूरत है? तो बेटा बड़े कोड में आपकी एक से ज्यादा क्लासेस हो सकती हैं। फिर कैसे पता चलेगा कि फंक्शन किस क्लास का मेंबर है? हमें तो जनरलाइज वे ढूंढना होगा ना। तो तरीका क्या है? यू राइट रिटर्न टाइप, देन यू राइट नेम ऑफ द क्लास टू विच इट बिलोंग्स, स्कोप रेजोल्यूशन, द नेम ऑफ फंक्शन, आर्गुमेंट लिस्ट एंड द बॉडी। ये टॉपिक क्लियर है? इसमें किसी को कोई डाउट? इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज आस्क। दिस सेशन में एंड एनी टाइम, दिस मीटिंग कैन एंड एनी टाइम। स्टूडेंट्स एनी क्वेश्चन? नो सर। नो। चलिए, फिर डिफाइनिंग फंक्शंस विद इन द क्लास, दिस यू हैव ऑलरेडी सीन। सारे फंक्शंस क्लास में बने हुए हैं, डिक्लेयर भी क्लास में हुए, डिफाइन भी क्लास में हुए हैं, है ना? तो दो तरीके हैं आपके पास, ईदर यू डिक्लेयर देम इन द क्लास और डिफाइन देम आउटसाइड, और डिफाइन देम इनसाइड। अब इन दोनों में फर्क क्या होता है ये नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस करेंगे। थोड़े से डिफरेंसेस होते हैं दोनों में। आप सोचिए थोड़ा सा कि आपको के हिसाब से कौन सा तरीका अच्छा है, which particular method you think is better and why you think so. Everything should be with proper justifications. Any answers? Can anybody tell us which method is the better method? Declaring inside, defining outside, or defining inside? So this was all for today, and I shall continue with the topic in my next video soon. If you found my lecture informative and you enjoyed that, then kindly like the video and do subscribe the channel. Till then, goodbye and stay safe. Thank you.